Hello students, welcome back to my channel. Today is the 11th mock test in this series. So today's mock test is all about soil forming processes. So let's start with the first question. First question is study of soil as a medium for plant growth is known as. Study of soil as medium for plant growth is known as. Options are pedology, edaphology, paleontology, ecology. The right answer is edaphology. Edaphology is the study of soil with respect to plant growth. Okay, pedology is the study of soil with respect to its origin, its formation, etc. Paleontology is the study of fossil. Then ecology is the study of organism and its environment. Right. Next question. Who is known as the father of soil science? Who is known as the father of soil science? Options are Marbut, Hillel, Dokuchev, Lebig. The right answer is Dokuchev. फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री लेबिग. हिलेल जो है वो फादर ऑफ सॉयल फिजिक्स है. मार्बोट जो है आई थिंक फादर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSS एंड LUP वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर. आपको पता है NBSS एंड LUP ने जो हमारा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया इसको डेलिनेट किए थे. सो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो NBSS LUP कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन सर 1934, 1955, 1976, 1985. द राइट आंसर इज 1976. 1934 में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस जो है ये 1934 में एस्टेब्लिश हुआ था. 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी एस्टेब्लिश हुआ था. 1985 में क्रीडा एस्टेब्लिश हुआ था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्डर ऑफ अबुंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट. द ऑर्डर ऑफ अबुंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इज iron greater than aluminum greater than silicon greater than oxygen, silicon greater than aluminum greater than iron greater than oxygen, aluminum greater than iron greater than silicon greater than oxygen, oxygen greater than silicon greater than aluminum greater than iron. The right answer is oxygen greater than silicon greater than aluminum greater than iron. ऑक्सीजन अराउंड 46% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में. देन सिलिकॉन 27% अराउंड, देन एल्यूमिनियम 8% अराउंड एंड आयरन 5% अराउंड पाया जाता है. तो देखिए यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो डोमिनेंट है अर्थ क्रस्ट में. ओके. सो अर्थ का जो है आउटर लेयर जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट. ओके. सो ऐसे अर्थ का लेयर रहता है. ये हो गया क्रस्ट, देन मेंटल, मीडियम, मेंटल, देन कोर. कोर जो है वो सेंट्रल जोन है. कोर में ज़्यादातर मेटालिक जो एलिमेंट है कोर में पाया जाता है, और क्रस्ट में जो है नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ये पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is an intermediate stage of weathering process? Which among the following is an intermediate stage of weathering process? Options are soil, rock, regolith, humus. The right answer is regolith. Next question. Which among the following is not a kind of weathering process? Which among the following is not a kind of weathering process? Options are physical, physiological, chemical, biological. The right answer is physiological. फिजिकल प्रोसेस एक वेदरिंग प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस एक वेदरिंग प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज ऑल्सो a process of weathering. Next question. Which among the following is not an agent of chemical weathering? Which among the following is not an agent of chemical weathering? Options are alternate wetting and drying, change in temperature, hydrolysis, both A and B.
द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये जो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है और चेंज इन टेम्परेचर है ये फिजिकल वेदरिंग है, और हाइड्रोलाइसिस जो है ये केमिकल वेदरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following mineral is least resistant to weathering? Which among the following mineral is least resistant to weathering? Options are quartz, apatite, olivine, gypsum. द राइट आंसर इज जिप्सम। ओके, अगर प्राइमरी मिनरल पूछा जाएगा तो ऑलिवाइन होगा प्राइमरी में, अगर सेकेंडरी मिनरल पूछा जाएगा तो जिप्सम होगा, और अगर ओवरऑल दोनों आंसर में है तो फिर जिप्सम ही आंसर होगा। ओके, लीस्ट रेजिस्टेंस, मोस्ट रेजिस्टेंस में प्राइमरी में क्वार्ज हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस? फ्रीजिंग होने के बाद वाटर का वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है? ऑप्शंस आर increase in volume, decrease in volume, remains the same, depends on temperature. The right answer is increase in volume. Okay, अब जब वाटर आइस होता है तो अराउंड 9 टाइम्स जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो होता क्या है, जो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में जहाँ पे रॉक्स के जो पोर्स होते हैं या फिर क्रेविसेस होते हैं वहाँ पे अगर वाटर रह जाते हैं और वो बर्फ़ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है 9 टाइम्स जब इंक्रीज होता है वॉल्यूम उसका, तो होता क्या है उसके ऊपर एक ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ता है जो रॉक के ऊपर, तो वो एक्सफोलिएट करता है, और वो एक वेदरिंग का प्रोसेस है, फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है। एंड अगेन आप अगर बर्फ़ को लेके पानी में डुबाओगे तो डूबेगा नहीं, वो ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ केमिकल वेदरिंग इज, द लोकेशन ऑफ केमिकल वेदरिंग इज, इनमें से कौन सी प्लेस में जो है केमिकल वेदरिंग ज़्यादातर होता है? ऑप्शंस आर लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। The right answer is junction of atmosphere and lithosphere. Next question. The chemical combination of water molecule with a mineral to form a new mineral is called, the chemical combination of water molecule with a mineral to form a new mineral is called, options are solution, hydration, hydrolysis, transformation. द राइट आंसर इज हाइड्रेशन। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है मिनरल जो है वाटर मॉलिक्यूल साथ कंबाइन होकर न्यू मिनरल क्रिएट कर रहा है, राइट। अगर वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से मिनरल से निकल जाता मतलब माइनस हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगर ये सॉल्यूशन मतलब न्यू मिनरल फॉर्मेशन ना करके वाटर मॉलिक्यूल के साथ वैसे ही रहता सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ होल डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a category of genetic horizon? Which among the following is a category of genetic horizon? Options are master horizon, transition horizon, subordinate horizon, all of the above. The right answer is all of the above. ये जितने भी है तीनों जो है कैटेगरी ऑफ जेनेटिक हॉराइजन। जेनेटिक हॉराइजन सिस्टम में मास्टर हॉराइजन भी आता है, ट्रांजिशनल हॉराइजन भी आता है, सबऑर्डिनेट हॉराइजन भी आता है। मास्टर हॉराइजन कौन सी है, जैसे ओ ए हॉराइजन, ओ हॉराइजन, ए हॉराइजन, बी, ई, सी, ये सारे हैं मास्टर हॉराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मास्टर हॉराइजन्स आर, टोटल नंबर ऑफ मास्टर हॉराइजन्स आर, ऑप्शंस आर 5, 6, 7, 9। द राइट आंसर इज 9। पहले कितना था, पहले 6 था। ओके, फिर 2014 में कुछ चेंजेस किया गया और 3 जो है ऐड किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ मास्टर हॉराइजन आर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर प्रोनाउंस्ड एंड वाइड स्प्रेड एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज, मोर प्रोनाउंस्ड एंड वाइड स्प्रेड एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज, ऑप्शंस आर वाटर, टेम्परेचर, ग्लेशियर, सोलर रेडिएशन।
The right answer is water. Next question. Rate of chemical weathering is higher in which among the following location? Rate of chemical weathering is higher in which among the following location? इनमें से कौन सी लोकेशन में केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जो है वो हायर रहता है? ऑप्शन सर, डेजर्ट, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, हिमालयस, पोलर रीजन. द राइट आंसर इज ह्यूमिड ट्रॉपिक्स. एक प्रोसेस होने के लिए, एक रिएक्शन होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए. तो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में दोनों मिल जाता है उसको, जो कि फेवरेबल है. डेजर्ट कंडीशन में टेम्परेचर अवेलेबल है, यस, लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं है. ओके, अगर हम ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करते हैं या फिर टेम्परेट डेजर्ट में, वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर भी अवेलेबल नहीं है. हिमालयन एंड पोलर रीजन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, टेम्परेचर इतना फेवरेबल नहीं करता है. तो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल वेदरिंग के लिए परफेक्ट है, सुइटेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The most important process of chemical weathering, that is also known as forerunner of clay formation. The most important process of chemical weathering, that is also known as forerunner of clay formation. Options are carbonation, hydration, hydrolysis, solution. The right answer is hydrolysis. Next question. Most important chemical weathering in primary and secondary minerals respectively are. इनमें से कौन सी जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है प्राइमरी मिनरल में होता है और सेकेंडरी मिनरल में डोमिनेंट है? ऑप्शन सर, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन. द राइट आंसर इज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन. हाइड्रोलाइसिस जो है एक इम्पोर्टेंट जो है डोमिनेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है इन प्राइमरी मिनरल, एंड हाइड्रेशन जो है वो सेकेंडरी मिनरल में डोमिनेंट प्रोसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन बीओडी वैल्यू इज. रिडक्शन ऑकर्स कब होता है? जब बीओडी वैल्यू, बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो ऑप्शन सर, बीओडी वैल्यू लो, हाई बीओडी वैल्यू, ऑप्टिमम बीओडी वैल्यू, नो रिलेशन. द राइट आंसर इज हाई बीओडी वैल्यू. बीओडी वैल्यू के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं. अगर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफ्लोरा जो है वाटर बॉडी में वो ग्रो करने लगते हैं बहुत तेज़ी से. तो वो क्या करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेते हैं. तो वहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ एनारोबिक सिचुएशन क्रिएट होता है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, तो वहाँ पे जो है रिडक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिडक्शन रिएक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हाई बीओडी होता है. ओके, तो बीओडी यहाँ पे हाई रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The stability series of weatherability of primary minerals was proposed by. The stability series of weatherability of primary minerals was proposed by. Options are Dokuchev, Hilgard, Goldick, Marbut. The right answer is Goldick. Next question. Which among the following is responsible for the aggregation and concretion of the soil? Which among the following is responsible for the aggregation and concretion of the soil? Options are primary mineral, secondary mineral, oxides of iron and aluminum, sodium hexametaphosphate. The right answer is oxides of iron and aluminum. Okay, so soil aggregation formation के लिए, aggregation क्या होता है, कुछ प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल ये मिलके एक स्टेबल एग्रीगेट फॉर्मेशन करते हैं. तो प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल जो है ग्रैनुलर फॉर्म में रहता है, तो उसको एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम का जरूरत रहता है. ऑर्गेनिक मैटर भी इंपॉर्टेंट है. देन सम कैटायन लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट है.
तो ये जो तीनों है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कुछ फ्लोकुलेटिंग एजेंट हो गया, देन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये एक स्टेबल एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। देन हम बात करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग को डिस्पर्सन करना रहता है, अगर सॉइल पार्टिकल को अलग करना रहता है तो वहाँ पे जो है हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या फिर कैल्गन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, जो कि स्टोक्स लॉ अप्लाई करने से पहले जो हाइड्रोमीटर मेथड या पिपेट मेथड हो गया वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल कैटेना वाज डेवलप्ड बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल कैटेना वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन सर गोल्डिक, मिल्ने, ब्राडी, मार्टिन एंड रॉसल। The right answer is Milne. Next question. The mineral that is formed in humid tropic and is prepared by exhaustive hydrolysis and leaching. इनमें से कौन सी मिनरल जो है ह्यूमिड ट्रॉपिक एरिया में फॉर्मेशन होता है एंड बाय एग्जॉस्टिव हाइड्रोलाइसिस एंड लीचिंग के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सर केओलिनाइट, इलाइट, ओके सो हियर इज द रिपीट, ओके इसको काट देते हैं, देन मोंटमोरिलाइट। चूज द करेक्ट आंसर। द राइट आंसर इज केओलिनाइट। सो केओलिनाइट जो मिनरल है ये एग्जॉस्टिव हाइड्रोलाइसिस एंड लीचिंग होके ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एरिया में जनरली फॉर्मेशन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सॉइल मैप ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, द फर्स्ट सॉइल मैप ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन सर मुखर्जी, बिश्वास, बसक, स्कोकल्स्काया। द राइट आंसर इज स्कोकल्स्काया। इन्होंने जो है फर्स्ट सॉइल मैप इन इंडिया प्रिपेयर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग जोनल सॉइल प्रोसेस कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ सिलिशियस पेरेंट मटेरियल आर डिजायरेबल, फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग जोनल प्रोसेस, इनमें से कौन सी जोनल प्रोसेस के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट एंड जो सिलिकॉन रिच पेरेंट मटेरियल का जरूरत होता है। ऑप्शन सर पोर्जोलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, लैक्टराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is porzolization. Next question. Elements which readily form metallic bonds are called, elements which readily form metallic bonds are known as, options are lithophile element, chalcophile element, siderophile element, atmophile element. The right answer is siderophile element. Okay, so there are different kinds of element who makes bond with certain kind of atoms or elements. So जनरली जो सिड्रोफाइल एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक अट्रैक्शन रहता है उनका, और एटमोफाइल एलिमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उनका जो है अफिनिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil occupying a key interpretative position in soil classification framework and covering larger area is known as, soil occupying a key interpretative position in soil classification framework and covering larger area is known as, options are topo sequence, pattern, benchmark soil, reference soil. The right answer is benchmark soil. Next question, in which stage of soil weathering only most resistant minerals to weathering survives, इनमें से कौन से स्टेज ऑफ वेदरिंग में जो है ओनली रेजिस्टेंट मिनरल्स टू वेदरिंग सर्वाइव्स, ऑप्शंस आर वायराइल, जुवेनाइल, सेनाइल, फाइनल। द राइट आंसर इज सेनाइल। सो सॉइल वेदरिंग का जो स्टेज है वो क्या क्या है, पहला इनिशियल, देन वायराइल, देन जुवेनाइल, ओके, देन सेनाइल, then final. Okay, next question, the process where steep slopes and accelerated erosion promote downward movement of soil mass under the influence of gravity, that is called, the process where steep slopes and accelerated erosions promote downward movement of soil mass under the influence of gravity called, options are exfoliation, lessivage, solifluction, colluviation.
The right answer is colluviation. Next question. Which among the following silicates are having honeycomb-like structure? Which among the following silicates are having honeycomb-like structure? Options are tectosilicate, inosilicate, phyllosilicate, orthosilicate. The right answer is phyllosilicate. Next question is the last question. Which among the following is an active pedogenic factor as classified by Joffe in 1949? Which among the following is an active pedogenic factor as classified by Joffe in 1949? Options are climate, parent material, relief, time. द राइट आंसर इज क्लाइमेट. सो जोफे ने जो है वेदरिंग के लिए फैक्टर रहता है, तो उसको क्या किए थे, दो टाइप का किए थे. एक एक्टिव फैक्टर किए थे क्लासीफाई, एंड अनदर इज पैसिव फैक्टर. ओके, सो एक्टिव फैक्टर में जो है ऑर्गेनिज्म और जो है क्लाइमेट आता है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, डायनामिक रहता है. और पैसिव फैक्टर में ये तीनों आ जाता है, पैरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम. सो स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है questions from soil forming processes and weathering. As I said in the previous video, you just subscribe to my channel for such kind of informative lectures and mock tests, and you just share this channel info with your juniors, like colleagues, friends, anyone who is preparing for any competitive exam. Yes, we will continue this series up to the completion of the syllabus. So see you in the next mock test. Till then, bye bye.